Hi everyone, welcome you all. So in this second lecture of matrices, we continue with some other types of matrices and we discuss some numerical example based upon the properties or definition of the matrices. So in this lecture 2, we first understand what is meant by determinant of the matrix. So I read as determinant of square matrix because when if you find the determinant, then the matrix is always a square matrix, means number of rows is equal to number of columns. If this condition is not satisfied, then the determinant of that matrix is not exist. So determinant is exist when number of rows is equal to number of columns. So here we have to check how to find the determinant of the given matrix. So if A is a square matrix, then the determinant of A is denoted by this mod A. Here mod, it is not a mod because there are the symbol of mod. Also, this is a symbol for determinant. So here, this symbol represents the determinant of A, or we simply write down determinant of A, in which every element is the same as the corresponding element of the matrix A, and whose order is the same as that of A. इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 एंड 1 3 और ये मैट्रिक्स को मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल ए से, और अगर मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब मुझे अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो एलिमेंट है वो इसकी पोजीशन या कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेंगे, सिर्फ मैट्रिक्स इज चेंजेस टू द डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में नेगेटिव साइन और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आएगा 3 - 2 which is equal to 1. So the value of determinant of A is given by 1. So डिटर्मिनेंट ए निकालना है, मतलब क्या करना है, उस मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स को आपको डिटर्मिनेंट के साइन में चेंज करना है और उसको सॉल्व करके आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सो ये एग्जांपल इज 1 4 1 3, इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या किया हमने, सिर्फ मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में रिप्लेस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 1 4 -3 × 6 6, आंसर इज -2, तो -2 is the determinant of that matrix. Next, based upon that determinant, there are the two types of matrices. One is called the singular matrices and another is called non-singular matrix. So actually जब भी हम determinant अगर किसी मैट्रिक्स को निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू अगर आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको दो चॉइस मिलेंगी, एक तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, एक तो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, कोई भी नंबर मिलेगा मतलब 0 नहीं मिलेगा। सो देयर आर द टू कंडीशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस दोनों कंडीशन पे दो मैट्रिक्स डिफाइन होते हैं। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे non-singular matrix. So we define the singular matrix by using a definition of determinant. So singular matrix. So a square matrix is said to be singular if its determinant is equal to 0. So here the example is A is equal to 2 3 1 2. Find the determinant, cross multiply 6, cross multiply 6, 6 minus 6 is 0. The answer is 0. Hence A is called a singular matrix. Similar to that, there is a non-singular matrix. अभी non-singular में क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी non-singular if determinant is not equal to 0. Again we take the example, 3 × 2 6, 5 × 1 5, 6 minus 5, answer is 1. 1 is not equal to 0. Therefore this matrix is non-singular. अभी इसका यूज कहाँ पे होगा, यहाँ पे यूनिट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मालूम होगा कि टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलता है आपको। तो ये इनवर्स निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि आपको मैट्रिक्स मालूम चाहिए कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन 0 होगा तभी इसका ए इनवर्स निकलना पॉसिबल है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है, अगर मतलब डिटर्मिनेंट अगर इसका 0 हो गया तो ये इनवर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, नॉट एग्जिस्ट रहेगा। तो इसीलिए जब भी आपको ये इनवर्स पूछेंगे, मतलब मैट्रिक्स हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर ही होना चाहिए, अदरवाइज अगर वो सिंगुलर हो गया तो उसका ये इनवर्स निकलेगा नहीं है।
Next definition is transpose of the matrix. This is one of the important concept in the matrix, that is the transpose of the matrix. तो transpose मतलब क्या रहता है? A matrix obtained by giving a matrix by interchanging the rows and column is called the transpose of the given matrix. इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें कुछ रोज होंगे या कुछ कॉलम होंगे. सपोज हम एक कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका एक रो है 1 2 और कॉलम है दूसरा रो है 1 3. ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को मैं अगर डिनोट करता हूँ ए से और मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए उसको डिनोट कैसे करते, ए रेज़ टू द पावर टी. ए पे टी देते हैं अब और ए डैश ऐसा डिनोट करते हैं. ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. और इसका आंसर जो रहेगा, आंसर कैसे रहेगा, आपको सिंपली क्या करना है, रोज को एक तो कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रोज में चेंज करना है, लेकिन दोनों में से एक ही बात करना है. दोनों अगर करेंगे तो बाद में आपको वही आंसर मिलेगा. तो करेंगे तो उसको कॉलम में चेंज करो, या कॉलम हो गए तो उसको किसमें करना है, आपको चेंज रोज में करना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला रो है 1 2, इसको कॉलम कर देंगे 1 2, और दूसरा रो है 1 3, इसको हम कॉलम कर देंगे 1 3. सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स. यहाँ पे और डेफिनेशन में आपको क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे गिवन जो है कि ट्रांसपोज क्या होता है. सो इफ ए यहाँ पे दिया है, इफ ए इज अ गिवन मैट्रिक्स, देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज और ए डैश. दोनों डेफिनेशन है, दोनों डिनोशन है ट्रांसपोज के, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं. अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमको ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज के लिए क्या होगा, सपोज आपके पास यम रोज है और यन कॉलम्स है, और ट्रांसपोज मतलब क्या करते हैं, एम रोज को कॉलम करते और कॉलम को रोज करते, तो उसका ट्रांसपोज की ऑर्डर क्या रहेगी, इंटरचेंज हो जाएगी. तो ट्रांसपोज की ऑर्डर क्या रहेगी हमारी, एन क्रॉस एम. सो इफ द ऑर्डर ऑफ द ए इज एम क्रॉस एन, देन द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इज एन क्रॉस एम. बाद में कुछ एग्जांपल है. अगर मेरे हमको ए इज गिवन है, तो देखिए आपको यहाँ पे पहला रो है तो ये पहला कॉलम हो जाएगा, और दूसरा रो है यहाँ पे दूसरा कॉलम हो जाएगा. ऑर्डर भी चेक करेंगे, और देखो यहाँ पे कितने रो है, यहाँ पे 2 रोज है. सो देयर आर द 2 रोज, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है. तो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 by 3. सो इन ए ट्रांसपोज देयर आर द 3 रोज एंड देयर आर द 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर इज 3 by 2. तो इसका एग्जैक्टली रिवर्स होगा, ये रो चेंजेस टू कॉलम, कॉलम चेंजेस टू रो. यहाँ पे देखिए, अगर ये मैट्रिक्स देखते हैं हम, तो यहाँ पे 3 रोज है और यहाँ पे 3 कॉलम्स है, तो दोनों सेम ही है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके ऑर्डर भी क्या रहेंगे, 3 into 3 रहेंगी. और क्या किया है, पहला जो रो है 1 2 2, ये पहला कॉलम 1 2 2. सिमिलरली 3 4 5 3 4 5 6 7 8 6 7 8. मतलब ट्रांसपोज में क्या करना है आपको, एक तो जितने पहला रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे चेंज करना है, या एक तो रो का कॉलम कीजिए और कॉलम का रो का कीजिए, लेकिन दोनों में से एक ही बात करना है. तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपोज मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज टोटली डिपेंड अपॉन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब रहेंगे, जब वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम रहेगा. मतलब आपको ये कंडीशन मिलेगी, इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अभी एक्चुअली मैट्रिक्स के एलिमेंट अगर हमने देखे थे, अगर आपको मैट्रिक्स के जनरलाइज एलिमेंट देखना है, तो इसको क्या लिखते हैं हम, A11, बाद में दूसरा क्या आएगा, A12, बाद में यहाँ पे आएगा तो क्या होगा ये A21, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा ये A22. ठीक है, मतलब इन जनरल हम मैट्रिक्स के एलिमेंट इस टाइप में लिख सकते हैं, IJ. ठीक है. सो इन मैट्रिक्स द फर्स्ट सफिक्स डिनोट्स द रो, first suffix denotes the row and second suffix denotes the column. और मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे. मतलब आई के जगह पे क्या रहेगा, जे रहेगा, तो जो जे कॉलम था वो जे रो हो जाएगा, और आई रोज था तो आई कॉलम हो गया था. अब ये दोनों इक्वल थे, मतलब दोनों वैल्यू जब इक्वल रहेंगे, तब उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, कि अगर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर आपको सेम मिल गया, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. The matrix is given that
1 2 3 2 4 6 3 6 6। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो कॉलम 1 2 3 पहला रो, 1 2 3 पहला कॉलम, 2 4 6 2 4 6 3 6 6 3 6 6। दोनों कंपेयर करो, दोनों वैल्यू देखेंगे आप तो दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, A इक्वल टू A ट्रांसपोज, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक आया तो उसका एंटी भी आएगा, दैट इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या है, अगर ये इक्वल टू आपको ये ट्रांसपोज मिल गया तो दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक, और अगर यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक, उसको भी देख लेंगे हम। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक, देयर इज अ करेक्शन in this statement, it is not a symmetric, it is called the skew symmetric, it is called the skew symmetric, skew symmetric if A is equal to A ट्रांसपोज, A इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज अगर आपको मिलेगा तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अभी यहाँ पे एलिमेंट के हिसाब से देखेंगे आप तो प्रीवियस एग्जांपल में जो देखा थे हमने कि अगर मेरे पास एलिमेंट आई ए आई जे है और ट्रांसपोज के एलिमेंट क्या होंगे, फिर ये जे आई होंगे, तो दोनों इक्वल तो चाहिए हमको लेकिन अपोजिट साइन चाहिए, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस, तो आपको क्या मिलेगा, ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई फॉर ऑल आई जे। सो इफ दिस कंडीशन इज satisfied that the matrix is said to be a skew symmetric, यहाँ पे भी करेक्शन है, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए वहां पे। मैट्रिक्स इज गिवन बाय ए इक्वल टू, अभी यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट रो 0 2 3 ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया। अभी एलिमेंट देखेंगे तो 0 इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और -6 हो जाएगा अगर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए दोनों वैल्यूज, दोनों मैट्रिसेस सेम हो गए, मतलब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ये इज इक्वल टू ये ट्रांसपोज मिल गया, लेकिन कब, जब इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, therefore this type of matrices is said to be a skew symmetric matrices। okay, नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है, तो ये कब देखेंगे हम। सो पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों मैट्रिसेस को हम तभी इक्वल बोल सकते हैं जब टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर द सेम ऑर्डर। मींस अगर पहले मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी क्या चाहिए आपको, 3 रो और 2 कॉलम ही चाहिए, ये पहली कंडीशन है। मींस नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अगर दोनों एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, दे आर ऑफ ए सेम ऑर्डर, और दूसरी क्या होगी, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम, सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड, मतलब जो जिस पोजीशन पे नंबर है हर मैट्रिक्स में वो दोनों नंबर क्या चाहिए, सेम चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम इक्वल मैट्रिक्स है। एग्जांपल देख लेंगे, देखिए अभी यहाँ पर देखेंगे आप 2 रोज है और 3 कॉलम है, यहाँ पर भी देखेंगे तो वहां पर भी 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर तो सेम हो गई। नंबर देखिए, पहला नंबर 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, 5 5 -3 1 1 6 6, so therefore we can say that a is equal to b। अगर मैंने यहाँ पे +3 कर दिया तो सभी नंबर तो सेम है लेकिन ये नंबर सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, a is not equal to b। तो a equal to b क्या होगा, जब उस मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम चाहिए और ईच एंड एवरी एलिमेंट भी क्या चाहिए, सेम चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, इट इज अ इक्वल मैट्रिक्स। नाउ we are discussing some example based upon the definition। so example number 1, a square matrix A equal to aij in which aij equal to 0, I is not equal to j। so here aij means aij is the element of the matrix, aij, suppose aij be any element of the matrix। so if you consider the matrix, so there are the number of the elements, that is a11,
A12, A13 and so on. Okay. So this is the suppose Aij be the element of the matrix. Condition is given that the Aij has the two values. इसके दो values है. एक तो इसके value 0 होंगे. कब? जब I और J इक्वल नहीं होता. और दूसरी वैल्यू क्या रहेंगी इसकी? 1 रहेंगी. जब I और J क्या रहेगा? सॉरी, दूसरी वैल्यू K है. जब I और J कितना रहेगा? इक्वल रहेगा. तो अभी I और J इक्वल है मतलब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? एक तो AI लिखेंगे आप इसको, या इसको AJJ लिखेंगे. मतलब पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों क्या है? सेम है. और अगर पहला और दूसरा एलिमेंट सेम है तो उसको क्या बोलते हैं हम? डायगोनल एलिमेंट्स. देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट A11, यहाँ पे क्या आएगा? A22, यहाँ पे क्या आएगा? A33. तो इफ द रोज एंड कॉलम का पोजीशन अगर सेम है तो उस नंबर को क्या बोलते हैं हम? डायगोनल एलिमेंट्स. तो आपको मैट्रिक्स कैसे मिल गई? कि जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है? K है. डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी है? K है. और नॉन डायगोनल मतलब I इक्वल टू नॉट इक्वल टू J है, वहां पे नंबर क्या है? 0 है. तो आपको इस टाइप के मैट्रिक्स मिलेंगे अभी. तो अगर हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो हमको इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा. देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा. पोजीशन A11, A12, A13, A21, A22, A33, A31. सपोज 3/3 के लिए हमने कंसीडर कर दिया. तो यहाँ पे I और J कब इक्वल है? देखिए यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पर 2 2 है और यहाँ पर 3 3 है. मतलब ये एलिमेंट. तो इसकी वैल्यू कितनी है? K. तो यहाँ पे हमने पुट कर दी K. और बाकी के लिए इसके एलिमेंट की वैल्यू क्या है? 0. तो ये 0 0 हो गए. तो पहली बात तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का टाइप कौन सा है. तो यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं. ओके. लेकिन डायगोनल एलिमेंट सेम भी है. तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है. और यूनिट मैट्रिक्स का भी डेफिनेशन वही है. डायगोनल एलिमेंट सेम, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स कितना होगा? 1 होगा. लेकिन यहाँ पर कितना है? K. एंड K इज एनी नंबर. वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. तो यूनिट इज नॉट द आंसर. ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. नल मतलब 0. गिवन नहीं हमको K 0 है, इसलिए नल भी नहीं होगा. डायगोनल क्यों नहीं हुआ? डायगोनल तो है वो, लेकिन मोर फ्रीफुली करेक्ट आंसर क्या होगा? कि अगर डायगोनल है और ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर द सेम है तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर मैट्रिक्स. सो देयरफॉर only diagonal elements are present and which are the equal. So A is the scalar matrix. The option C is correct. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस टाइप से, आप कंफ्यूज करने के लिए आपको सब ऑप्शन गिवन है. कोई बोलेगा यूनिट है, कोई बोलेगा डायगोनल है. लेकिन आप ध्यान में रखिए कि यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल हो गई, लेकिन मोर परफेक्ट एकदम एक्यूरेट जो आंसर है आपको वही आंसर जानना है. डायगोनल में क्या होगा? डायगोनल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए लेकिन डायगोनल वैल्यू तो सेम है. तो सेम अगर होगा तो वो क्या रहेगा? स्केलर रहेगा. अगर यहाँ पे 1 1 होता था तो यूनिट होता था, लेकिन वो 1 1 भी नहीं है, तो स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पे इसका आंसर हो गया. एक और एग्जांपल ले लेंगे. A is a square matrix for which Aij equal to I square minus J square, then the matrix is said to be. अभी देखिए आपको ये Ij की वैल्यू गिवन है, I square equal to J square. अभी सपोज मुझे अगर यहाँ पे आपने देखा हो तो यूनिट, जीरो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इसके बारे में बोला है. तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज आपको मालूम चाहिए. तो अगर सिमेट्रिक किसको बोलते हैं हम? ये इक्वल टू अगर ये ट्रांसपोज है तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिमेट्रिक बोलेंगे. और यहाँ पे अगर निगेटिव आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे. और ट्रांसपोज मतलब क्या रहता है? रोज को कॉलम में चेंज करो, कॉलम को रोज में चेंज करो. तो अगर एलिमेंट हमारा Aij है, एलिमेंट अगर Aij है तो यहाँ पर I क्या हो गया? रो, और J क्या हो गया? कॉलम. तो इसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? Ji. और I की जगह पे J आ गया और J की जगह पे I आ गया. अगर इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकल लिया तो मुझे क्या मिलेगा? I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर. और I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर की वैल्यू क्या है? Aij. तो यहाँ पर देखिए ये जो है और ये जो है, ये क्या है? एक दूसरे का ट्रांसपोज है, क्योंकि J की जगह पे I आ गया और I की जगह पे J चला गया. मतलब रोज इज चेंजेस टू कॉलम एंड कॉलम इज चेंजेस टू रो, मतलब उसका ट्रांसपोज आ गया. और अगर दोनों ट्रांसपोज इक्वल है तो उसको क्या बोलते हैं हम?
सिमेट्रिक, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन भी है, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि aij इक्वल टू माइनस aj, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन हो गई। सो देयरफॉर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक और एग्जांपल ले लेंगे। अभी यहाँ पे डायरेक्ट दिया है कि इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट्स आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको बोला है तो आपके एक ध्यान में आना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रहेगा, ये इक्वल टू ये ट्रांसपोज रहेगा लेकिन निगेटिव रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, निगेटिव हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। अभी एलिमेंट चाहिए आपको, तो एलिमेंट हम क्या बोलेंगे, ये आई जे। अगर ए के एलिमेंट ए आई जे है तो ट्रांसपोज के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए जे आई हो जाएगा, ए जे आई होगा। अभी हमको क्या चाहिए, वी हैव टू ओनली कंसिडर रिगार्डिंग द डायगोनल एलिमेंट्स। सो डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स आई इक्वल टू जे, जब दोनों सफिक्सेस सेम होंगे तो उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल एलिमेंट्स। तो फॉर द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज एंड ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे है, ये हमको मालूम है, ये हमने लिख लिया। अभी डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बोला है तो क्या होगा, दोनों आई रहेंगे या दोनों जे रहेंगे, इसलिए हमने क्या किया, आई इक्वल टू जे पुट कर दिया फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, तो हमको मिल गया ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, आई इक्वल टू जे, तो जे की जगह पे मैंने आई पुट कर दिया, तो जे की जगह पे आई पुट करने के बाद ए आई इक्वल टू माइनस ए आई, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ए आई प्लस ए आई इज इक्वल टू हो गया क्यू ए आई, और ए आई इक्वल टू 0 हो गया। तो ए आई मतलब कितना हो जाएगा, A11, बाद में A22, बाद में A33, बाद में A44 चलता जाएगा, और ये सभी क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। तो अगर आई को आप वेरीज करेंगे 1 2 3 4 कितने भी लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 1 2 2 3 तो सब 0, मतलब सभी डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, 0। और आपको क्या पूछा था, वही पूछा था, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, आंसर करेंगे। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, और कुछ सेकंड 5 या 10 सेकंड में आप पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट मालूम चाहिए। तो ये प्रॉब्लम उसी टाइप की है कि अगर आपको उस डेफिनेशन मालूम है सभी, तो आप उस टाइप की प्रॉब्लम कर सकते हैं।